Good morning students, welcome back to the class 11 subject business study. As we are going with the chapter number 4 business services, as I have already provided you the notes of that particular chapter business services, this contains are being explained right now to you one by one, and it is an easy chapter for you. In this one topic is remaining as an uh, insurance which has to be shared to you. It will be shared after exams, and then you will be carry forwarding that topic and chapter will be getting over. So I'll go with the particular selected points here today. Starting with the banking, introduction of banking. What is banking? As you have studied all these things in the terms of money and credit in chapter number 3 in economics at 10th standard. Starting with the banking, I have a certain content over here. I'll treat it and then explain. Banking plays a very important role in an economic development of the nation. The Banking Regulatory Act 1949 defines as the term as banking as the accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable able by check, draft, order or otherwise. बैंकिंग में होता क्या है एग्जैक्टली? बैंकिंग में आप मनी इन्वेस्ट करवाते हो या फिर मनी आप डिपॉजिट करवाते हो पब्लिक से, और वही पैसों को आप मनी बोरोवर जो होते हैं, जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, आप उनको देते हो. In terms of public demand, you are able to pay the amount back to the public if they are demanding through the different modes of payment receiving like check, draft, order, otherwise, and any other mode ATM card. कोई भी कार्ड से अगर वो पैसा मांगते हैं तो बैंक उनको मना नहीं कर सकता, उनको पेमेंट करनी ही पड़ेगी. बैंकिंग एसेंशियल पॉइंट क्यों है? ये मेरे पास यहाँ पे 4 पॉइंट्स है. अगर 4 पॉइंट्स को अगर याद रखते हो तो बैंकिंग पूरा इजीली समझ में आ जाएगा. The four essentials of banking is there should be an acceptance of deposit. बैंक हमेशा मनी एक्सेप्ट करते रहे और जब भी पब्लिक डिमांड करे तो उनको रिटर्न बैक भी कर दें. Second, the deposit should be received from the public. Yes, the amount which you are accepting as a deposit, it has to be taken by the public itself, and it has to be repaid on demand or expiry of term of a specific period of time. या फिर आपने कुछ फिक्स अमाउंट रखा है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए और फिक्स टाइम निकल जाता है, उसके बाद में आपको पेमेंट कर देना है. द पर्पस ऑफ डिपॉजिट शुड बी लेंडरिंग और इन्वेस्टमेंट. और अगर वो डिपॉजिटेड अमाउंट आपके पास आ रहा है तो वो अमाउंट को आप यूटिलाइज करो. कैसे यूटिलाइज करोगे? बाय मेकिंग बोरोविंग्स. लोगों को आप लोन्स दोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, और उससे जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आप ऑर्गेनाइजेशन में यूज करोगे. Now we are going with a different type of bank account. A bank account आपने यहाँ पे सिर्फ 5 पढ़ने हैं, but we are having more different facilities, different variants of accounts. So we are having a 5 basics. Out of that 4 we are normally using. That fifth one no one knows that much. So no one use that particular account. Let's begin with the types of account. A bank account is recorded for the financial transaction between the customer and the banking institution. बैंक अकाउंट जो होता है ना, ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके बीच में नॉर्मली कस्टमर्स और बैंक के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, पैसा आया गया, वो सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड होता है. Banks offer several type of accounts to cater the needs of all sort of individuals. हर टाइप के इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करने के लिए बैंक्स डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करती है. जैसे बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट है. जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो पैसा उसको यूज़ नहीं करना है तो वो फिक्स डिपॉजिट का इस्तेमाल कर सकता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सैलरीड पर्सन होते हैं तो उनको सेविंग करने की हैबिट के लिए सेविंग अकाउंट है. रिकरिंग में क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक एक लमसम अमाउंट को आप रिपीटेडली ट्रांसफर करते रहते हो, उसके लिए कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट. उसके बाद में आता है मल्टी ऑप्शनल. आपके पास 2-3 अलग अलग अकाउंट ऑप्शन है, उसमें से कोई भी 2 सिलेक्ट करके उसको कंबाइन करके आप इंटरेस्ट गेन कर सकते हो. तो ये सब चीज़ें होती हैं टाइप्स ऑफ बैंकिंग के अंदर.
अब जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, बैंकिंग में अलग अलग टाइप, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अकाउंट बनाए हुए हैं. This banking serves an important purpose of mobilizing saving in organizing to utilize them the profitable investment. और ये सारे सेविंग्स ऑर्डर्स, ये जो टाइप ऑफ अकाउंट्स है, ये इसलिए बनाए जाते हैं जिससे वो प्रॉफिट अर्न कर सके, और प्रॉफिट करने के बाद में कस्टमर्स को एज एन इंटरेस्ट पे करते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स आपको प्रोवाइड करती है. तो यहाँ पर पॉइंट में दिया भी है, टाइप ऑफ अकाउंट्स ऑफर्स कैन बी वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक. कहीं पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई मिलता है, कहीं पे बहुत लो मिलता है, कहीं पे सिटीजन्स को इंपॉर्टेंस मिलती है, कहीं पे बिजनेसमैन को इंपॉर्टेंस मिलता है. बैंक टू बैंक हर जगह आपको अकाउंट वेरी मिलेगा या डिफरेंसेस मिलेंगे. तो हम लोग शुरू करते हैं. यहाँ पे 5 पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं: सेविंग अकाउंट, current account, fixed deposit account, recurring account, and multi-optional deposit account. One by one, we will see with the beginning of saving account. Saving account. Saving account is an account meant for the people who wish to save a part of their income by safeguard the future and earn interest on the saving. हम जैसे सैलरीड पर्सन जो होते हैं, या फिर ऐसे लोग जो सर्विसेज देते हैं और फिर बाद में जो मनी बचाते हैं, वो घर का पूरा खर्चा उठाने के बाद में जो थोड़ा सा 1000 2000 3000 रुपीज़ जो बच जाता है, उसको वो सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं. तो सेविंग अकाउंट से वो अपनी इनकम को सेव गार्ड करते हैं, साथ साथ में सेविंग अकाउंट से जो इंटरेस्ट जनरेट होता है वो भी वो एक्सेप्ट करते हैं. तो यहाँ पर बोला है सेविंग हैबिट्स के लिए आप सेविंग करते हैं. इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लोगों को हैबिट डालनी है कि मनी को सेव करो. उसके बाद में यहाँ पर आप मिनिमम डिपॉजिट से सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं. विदाउट चेक आई थिंक इट इज़ टेकिंग अबाउट 500 रुपीज़. बिना चेक के अगर आप सेविंग अकाउंट बनाते हो चेक बुक के अगेंस्ट, तो आपको 500 रुपीज़ पे करने होते हैं. और अगर आपको चेक बुक के साथ में आपको अकाउंट ओपन करना है तो 1000 रुपीज़ मिनिमम आपको डिपॉजिट करना होता है. ये नॉर्मल बैंक है, और बैंक टू बैंक वेरी होता है. कई बैंक में तो 5000 रुपीज़ मिनिमम डिपॉजिट होना ज़रूरी है, कहीं कहीं पे 10,000 रुपीज़ मिनिमम डिपॉजिट होना ज़रूरी है. आई एम टॉकिंग अबाउट हाई क्लास प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हु आर डूइंग बैंकिंग. That's it. Now it has been said that number and amount of deposit, there is no restriction. आपको जितना पैसा डालना है डाल सकते हो, जितनी बार डालना चाहते हो डाल सकते हो, लेकिन विड्रॉ करने के लिए रिस्ट्रिक्शन है. इसलिए आपको थर्ड फोर्थ पॉइंट में आपको दिया है, विड्रॉल ऑफ एन अकाउंट कैन बी either by signing of withdrawal form or issuing check or ATM, but it has a number of restrictions. आप यहाँ पे महीने में 6 बार या 7 बार ही आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आप डिपॉजिट एंड नंबर ऑफ टाइम कर सकते हो. यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नॉमिनल होता है सेविंग अकाउंट के लिए, और इंटरेस्ट जो है वो बैंक टू बैंक चेंज होता है और टाइम टू टाइम चेंज होता है. सेविंग का जो नेचर है वो कंटिन्यूस नेचर है. यहाँ पे कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है कि यस 20 साल बाद आप सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा नहीं डाल सकते. आप कंटिन्यूस इसको चालू रख सकते हो. इसके बेनिफिट्स क्या है या एडवांटेजेस क्या है? सेविंग से क्या होता है, सेविंग हैबिट जनरेट होती है. इससे क्या होता है, डिपॉजिटर्स इनकम जो अर्न करते हैं उससे इंटरेस्ट के बेनिफिट्स मिलने लगते हैं. डिपॉजिटर को अगर कुछ पेमेंट करना है तो चेक से पे कर सकता है, और चेक जो है वो उनके लिए एज एन डॉक्यूमेंट जैसा वर्क कर सकता है, एविडेंस. बैंक अलग अलग सेविंग अकाउंट होल्डर्स को नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे लॉकर की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं. फिर बाद में अगर आपको लोन्स चाहिए तो लोन्स ईजिली अवेलेबल हो जाता है. तो ये सब चीज़ सेविंग अकाउंट में पॉसिबल है. Now we are going with the point number 2. It is concerned as current account. जब हम लोग करंट अकाउंट की बात करते हैं तो करंट अकाउंट इज फॉर द बिजनेसमैन who do regular transactions with bank by depositing and withdrawal. नंबर ऑफ टाइम डिपॉजिट्स भी वो कर सकता है, नंबर ऑफ विड्रॉल भी कर सकता है, बट इनको इंटरेस्ट नहीं मिलता. ये ध्यान में रखना है. इन करंट अकाउंट amount can be deposited and withdrawn at any time without giving any notice. There is no restriction on number and amount of deposits and withdrawal. करंट अकाउंट के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आप यहाँ पर पैसा जितना लगाना चाहते हो लगा सकते हो, जितना निकालना चाहते हो निकाल सकते हो. आपको कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है बैंक को, बट बैंक आपको इंटरेस्ट पे नहीं करेगा. एज एन करंट अकाउंट होल्डर यू डू नॉट गेट इंटरेस्ट, बट इफ यू टेक एनी सर्विसेज फ्रॉम बैंक
then you have to pay certain interest. यही फर्क है इसमें. इट इज़ कंटिन्यूस इन नेचर एंड देयर इज नो फिक्स पीरियड. वापस सेम पॉइंट जो है जो हमने सेविंग के लिए पढ़ा. इस करंट अकाउंट को हम लोग डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं. नाउ वी आर गोइंग विद द एडवांटेजेस. जब एडवांटेजेस की बात करते हैं तो बिजनेसमैन का जो ट्रांजैक्शन है वो स्मूथ रहता है. यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल के लिए. तो बिजनेसमैन को पैसा निकालने में और देने में बहुत आसानी होती है. बिजनेसमैन डायरेक्टली पेमेंट कर सकता है चेक की हेल्प से सीधा क्रेडिटर्स को. उसके अलावा बैंक कलेक्ट कर सकता है मनी ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर. मैं अगर करंट अकाउंट होल्डर हूँ तो मेरे बिहाफ पे बैंक पैसा कलेक्ट कर सकता है. या फिर बैंक हमें फैसिलिटी दे सकता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 20,000 रुपीज़ है लेकिन चेक जो है वो 25,000 का है तो मेरे अकाउंट से 20,000 तो डिडक्ट होंगी. लेकिन बैंक क्या करेगा मेरे बिहाफ पे 5,000 रुपीज़ और ऐड करके वो सामने वाली पार्टी को पे कर देगा. फिर बाद में जब मैं अमाउंट डिपॉजिट करूंगा तो वो रिड्यूस कर लेगा 5,000 उसका अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. Current account reveals the information about credit worthiness of an account holder to the creditors and lenders. अगर मुझे उधार लेना है या फिर क्रेडिट परचेज करना है तो मेरा ये करंट अकाउंट मुझे हेल्प करता है बिजनेस करने के लिए. क्योंकि इसके अंदर क्रेडिट वर्दीनेस मुझे पता चलता है कि मैं कितना पेमेंट क्रेडिट ले सकता हूँ और कितना जल्दी पे करता हूँ. ये फिर इसके अंदर पता चल जाता है. या वी कैन से दैट स्टेटमेंट के अंदर आपको पता चल जाता है. तो करंट अकाउंट होल्डर्स को इसका बेनिफिट रहता है. नेक्स्ट पॉइंट इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. जब हम लोग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पे लम सम अमाउंट एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिक्स कर दिया जाता है और उसको फिर हम लोग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बेनिफिट की बेस पे रख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे 20,000 रुपये रखने हैं. 20,000 में 3 साल के लिए रखे तो मुझे 20,000 के ऊपर एवरी ईयर 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है. तो मतलब 2,000 रुपीज़ पर ईयर इंटू 3. तो मुझे 26,000 एंड इन दी एंड ऑफ द थर्ड ईयर मुझे 6,000 रुपीज़ टोटल ऐड करके मिलने वाले हैं 20,000 में. तो फिक्स डिपॉजिट जो है ना वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे पैसों की आपको ज़रूरत नहीं है. पैसा आपके पास ऐसे ही रखा हुआ है तो उसको यूटिलाइज किया जाता है बाय मेकिंग दैट मनी डिपॉजिटेड एज फिक्स डिपॉजिट. इस फिक्स डिपॉजिट के अंदर आपको एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करनी पड़ती है जिसके अंदर आप 15 डेज से लेके 10 ईयर्स तक डिपॉजिट कर सकते हो. यहाँ पे इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत हाई होता है और अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने अमाउंट कितना डिपॉजिट किया है. और इंटरेस्ट जो है वो बैंक टू बैंक वेरी होता है. साथ साथ में इन केस अगर फिक्स डिपॉजिट आपको ब्रेक डाउन करनी पड़ी या फिर आपको पीरियड स्पेसिफिक पीरियड आने से पहले पहले आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप पैसा तो निकाल सकते हो. नो डाउट पैसा निकालने के लिए कोई रोक टोक नहीं. बट जो आपका इंटरेस्ट जनरेट हुआ था ना वो आपको नहीं मिलेगा. आपको इंटरेस्ट आपके मेच्योरिटी पीरियड के बाद में ही मिलेगा टाइम एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी पीरियड. लेकिन अगर आपको फर्दर वापस एक्सटेंड करना हो तो आप कर सकते हो. इसीलिए इसको कहते हैं टर्म डिपॉजिट अकाउंट या फिर टाइम डिपॉजिट अकाउंट. इसके बेनिफिट्स ये हैं कि यहाँ पे डिपॉजिटर अपने अमाउंट को कन्वर्ट करता है हाई अर्निंग के साथ में. साथ साथ में यहाँ पे डिपॉजिटर्स को बेनिफिट्स मिलते हैं लोन्स की तरह. क्योंकि अगर आप फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो फिक्स अमाउंट जो है वो 3-4 साल तक बैंक खुद यूज़ करता है एज एन प्रोवाइडिंग एज एन लोन. और यहाँ पे मेच्योरिटी पीरियड आने के बाद में आप अपने असेट्स को परचेज कर सकते हो, बेनिफिट्स ले सकते हो. यहाँ पे आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप बिजनेस कर सकते हो या फिर आपका जो अमाउंट है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैंक को आप दे देते हो, बैंक उसको यूटिलाइज करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. जब हम लोग रिकरिंग अकाउंट की बात करते हैं तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के अंदर आप रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मनी रखते ज़रूर हो लेकिन यहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फिक्स से थोड़ा कम होता है. बट यहाँ पर क्या होता है यहाँ पे आप एवरी मंथ आप मनी डिपॉजिट करते हो. फॉर एग्जाम्पल आप 3 साल के लिए डिपॉजिट करना चाहते हो रिकरिंग तो एवरी मंथ आपने फिक्स किया कि आप 1,000 रुपीज़ फिक्स डालोगे तो आपको एक पीरियड दिया जाएगा कि 1 to 7 के बीच में आपको 1,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर देना है. अगर नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी. तो ये पॉसिबल है, ये आप कर सकते हो.
तो रिकरिंग में क्या होता है कि आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता जरूर है, लेकिन फिक्स के कंपेयर में उतना हाई नहीं मिलेगा। फिक्स में क्या होता है, आप लमसम अमाउंट रखते हो, लेकिन रिकरिंग में क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स को ऐड करते जाते हो। फिर जब 36 मंथ्स खत्म हो जाते हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो आपको एड ऑन करके मिल जाता है। यहाँ पर आपको बोला हुआ है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप रेगुलर सेविंग हैबिट्स अमंग्स द पीपल। द मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज 6 मंथ एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स। आप यहाँ पे डिपॉजिट 6 महीने के लिए कर सकते हो मिनिमम, और मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैंक टू बैंक, अमाउंट टू अमाउंट, मंथली डिपॉजिट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको पासबुक मिलती है हर महीने, जब भी आपने अमाउंट डिपॉजिट किया पासबुक के अंदर 2 दिन बाद में उसकी एंट्री आ जाती है। आप यहाँ पर भी फिक्स डिपॉजिट जैसा विड्रॉ नहीं कर सकते कभी भी। आपका मेच्योरिटी पीरियड आ जाए उसके बाद में ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपने मेच्योरिटी पीरियड से पहले अगर अमाउंट निकाल लिया तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नाउ वी आर गोइंग विद द बेनिफिट्स। अब जब बेनिफिट्स की बात करते हैं तो बेनिफिट्स के अंदर आता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट जो है वो एनकरेज करता है रेगुलर सेविंग्स। रिकरिंग डिपॉजिट जो है वो अकाउंट होल्डर्स को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। बैंक जो है वो यूटिलाइज कर सकता है स्मॉल टर्म लोन्स को एज एन बिजनेसमैन, और यहाँ पर बैंक जो है वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स तक अपने प्रॉफिट अर्न कर सकता है। Multi-optional deposit account. Now we are going with the topic of multi-optional deposit. In this, there is a combination of two deposit accounts which are being clubbed, like it has been mentioned in this MOD. Your saving account and fixed account are collaborated and making as a new account known as multi-optional deposit account. In this account, you are having a certain limitations for a saving. Here, for example, if you are having a fixed deposit of 20,000 rupees, in that you are having another saving account, in that you have made a certain amount to used. For example, you are thinking that about 40,000 rupees will be used and it can be rotated according to the needs. So what you have done, you have made a certain changes in saving account. You say that 40,000 rupees plus, if any amount more than 40,000 is there, it has to directly transfer to fixed deposit. So fixed deposit automatically gets enjoyed by making higher interest. यहाँ पे होगा क्या, आपने सेविंग अकाउंट एंड फिक्स अकाउंट दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो फिक्स अकाउंट आपका फिक्स है जिसके अंदर आपने 20,000 ऑलरेडी फिक्स करके रखा हुआ है, वेर सेविंग अकाउंट के अंदर आपने डिसाइड किया कि 40,000 रुपीज जितना अमाउंट आप यूज करोगे, लेकिन उसके ऊपर जो भी अमाउंट ऐड होगा वो ऑटोमेटिकली विदाउट प्रायोरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन डायरेक्टली वो सिर्फ फिक्स अकाउंट में चला जाना चाहिए। और फिक्स अकाउंट में जब वो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो अमाउंट को हम लोग इंटरेस्ट के साथ में जोड़ना शुरू कर देंगे। इसलिए यहाँ पे आपको कहा भी गया है कि इट इज़ एन थ्राई होल्ड लिमिट, और यहाँ पर आप अमाउंट इंजॉय करोगे फिक्स डिपॉजिट के रिलेटेड। यहाँ पे अकाउंट होल्डर अपने अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है सेविंग अकाउंट का जितना लिमिट उसने डिसाइड किया है उतना, लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर वो अमाउंट विड्रॉ करता है तो फिक्स डिपॉजिट जो उसने बनाए थे वो फिक्स डिपॉजिट ऑटोमेटिकली ब्रोक डाउन हो जाएगा, या फिर उसका जो इंटरेस्ट होल्डिंग पोजीशन था वो सब कुछ चला जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं स्वाइप आउट या रिजर्व स्वाइपिंग। ये मल्टी ऑप्शन का सिंपल सा एक इंट्रो पार्ट है। नाउ वी आर गोइंग विद द टॉपिक बैंकिंग सर्विसेज, as we will see bank draft, banker check, and then we will see our next topic bank overdraft and cash credit. This four topics in today's video we will complete. In next video we will see NEFT, RGFT, and then we will continue with the other concepts on next video. Now in bank draft is an order issued by the bank to any branch of a same bank to pay the specific amount for the person named in it. अगर आप बैंक ड्राफ्ट अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा, अब बैंक ऑफ बड़ौदा में जाते हो, कहते हो कि
मुझे बैंक ड्राफ्ट चाहिए, कोई भी दूसरा बैंक आउट ऑफ स्टेट विद इन इंडिया, जहाँ पर भी बैंक ऑफ बड़ौदा है वहाँ पर ये चेक जाएगा और वहाँ पे उस चेक पे पर्सन का नेम होगा, वो पर्सन के नेम के अगेंस्ट में ही उसे पेमेंट मिलेगा, उसको कहते हैं बैंक ड्राफ्ट। इन दिन अगर मेरा नाम वहाँ पर है और मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ और मुझे विड्रॉ करना है तो पहले विड्रॉ नहीं होगा, वहाँ पे अकाउंट होल्डर ने जिसका नाम दिया है वो पर्सन वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए एग्जैक्टली, तभी जाके उसको पेमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे कस्टमर जो है वो ड्रॉ करता है बैंक ड्राफ्ट, और बैंक ड्राफ्ट नॉर्मली चार्जेस के साथ में होता है, आपको थोड़ा चार्जेस पे करने होते हैं। यहाँ पे कस्टमर डिमांड करता है या रिक्वेस्ट करता है बैंक को कि इश्यू करे वो बैंक ड्राफ्ट, और ब्रांच ऑर्डर देता है कि कोई भी दूसरे बैंक के अंदर सेम बैंक ऑफ बड़ौदा सेम डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिफरेंट प्लेसेस में बैंक ऑफ बड़ौदा से पेमेंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे गारंटी मिलती है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि यहाँ पे बिल डिसऑनर होने के चांसेस होते ही नहीं है, मतलब चेक बाउंस होने के चांसेस नहीं होते। यहाँ पे आपको नॉमिनल फीस या कमीशन पे करना पड़ता है बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए, इसलिए इसको हम लोग डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं या फिर हम लोग बैंकर्स ड्राफ्ट भी कह सकते हैं इसको। नॉर्मली गवर्नमेंट कॉलेजेस या स्कूल के अंदर आपको अगर चेक से पेमेंट करना होता है तो आप डीडी से पे करते हो, डिमांड ड्राफ्ट बैंकिंग से करते हो। नेक्स्ट पार्ट इज बैंकर्स चेक पे ऑर्डर। अब बैंकर्स चेक क्या है? बैंकर्स चेक अल्टीमेटली बैंक ड्राफ्ट जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर आपका पेमेंट आपके टाउन के अंदर ही होगा, टाउन के बाहर नहीं होगा। वैसे जैसे डीडी की जब हम लोग बात करते हैं तो डीडी ऑल इंडिया के अंदर कहीं पे भी आप एनकैश कर सकते हो, लेकिन बैंकर्स चेक जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक टाउन के अंदर तक ही लिमिटेड है। यहाँ पर भी आपको कमीशन पे करना पड़ता है, यहाँ पर भी बैंक एश्योरिटी देता है कि आपको जो अमाउंट है वो पे हो जाएगा, तो इसको हम लोग पे ऑर्डर कहते हैं। हम लोग रियल टाइम एंड एनईएफटी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए इसको अभी स्किप कर देता हूँ मैं। We will carry forward with the bank overdraft facility. बैंक overdraft facility सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स तक के लिए ही है। यहाँ पे सेविंग अकाउंट फिक्स अकाउंट वाले इसको यूज नहीं कर सकते। It refers to the facilities in which the customers are allowed to overdraft his current account up to the agreed limit. एक पर्टिकुलर लिमिटेशन तक आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आपको बैंक को चार्जेस पे करने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। उसके बाद में आता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या है? कैश क्रेडिट नॉर्मली लोन्स रेफर करता है जिसमें हम लोग बोरोइंग्स करते हैं अगेंस्ट द असेट्स। हमारे पास कोई स्टॉक है या फिर बाद में शेयर है, बॉन्ड्स है, वो दे के हमें कैश तुरंत मिल जाता है, उसको कहते हैं कैश क्रेडिट। यहाँ पे हम लोग बोरोइंग्स के लिए स्टॉक या असेट्स का इस्तेमाल करते हैं और ये डे टू डे वर्क कैपिटल के जैसा काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। टुडे वी हैव सीन almost lot of things, and then in tomorrow's lectures, sorry not tomorrow but today itself I am also uploading one more lecture. In that we will see NEFT, RGST, real time gross settlement, then we will see NEFT, and then we will see electronic banking. Today we will complete at least automatic machine, debit card, credit card concept, internet banking, mobile banking. Then in next video we will see telecommunication, or we will cover telecommunication itself in next video also. So that's it for today. Thank you.